Assalamu alaikum dear student. Welcome to Bahria Model School PNAD Maripur Secondary Wing. I am your chemistry teacher Shazia Amin going to conduct your third lecture. So today we are going to start chapter number 4, periodicity of elements. So topics we are going to study: the search for classification, Dobrunier's classification, Newland's classification, Lothermier's classification and Mendeleev's classification. So as the name said, the periodicity of elements. So periodicity of elements, that's mean the arrangement of elements within a periodic table. So the periodicity of elements is the arrangement of elements in such a way that elements repeat their similar properties at regular interval. That is called as periodicity. So the search for classification. With the passage of time, when more and more elements have been discovered, the scientists need a framework to put these elements in a structural manner so the study of these elements could be easier. So previously, classification was done according to their increasing atomic weights because scientists thought that the fundamental property of an element is the atomic weight. So they arrange elements according to their atomic weights. But they failed. So the present long form of periodic table based on increasing atomic numbers, because atomic weight is not a fundamental property of an element. Okay. So we are going to trace the history that how the elements arranged with the passage of time. So many scientists do their efforts for the arrangement of elements. So first of all, Dobrunier was a scientist who arranged elements in a group of 3. So he make a set of 3 elements or group of 3 elements with very similar chemical properties. So that is called as triad. Okay, triad mean 3. इसने 3 elements का group बनाया. Like you can see in these pictures: lithium, sodium, potassium, calcium, strontium and barium, chlorine, iodine and bromine, sulfur, tellurium and selenium. Okay, so he make a group of 3 elements, and what he done, he calculate the average atomic mass of first and third element. For example, you can see in group A lithium, sodium and potassium. उसने क्या किया, lithium का atomic weight क्या है 7, potassium का atomic weight क्या है 39. ठीक है, उसने इन दोनों का क्या निकाला, अर्थमेटिक मीन. ठीक है, इनके एटॉमिक मास का फर्स्ट और थर्ड वाले के एटॉमिक मास का उसने अर्थमेटिक मीन निकाला. दैट इज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यूज. टोटल वैल्यूज कितनी थी 2, तो ये अर्थमेटिक मीन कितना आया 23. दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट सोडियम. ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास भी क्या है 23. ठीक है, इसी तरह आप देखें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम. उसने कैल्शियम यानी फर्स्ट वन और थर्ड वन का अर्थमेटिक मीन निकाला. डेट इज 88.5. दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द atomic mass of the middle element of strontium 87.5. Similarly chlorine, bromine and iodine, तो उसने पहला क्लोरीन और थर्ड वन आयोडीन का अटोमिक अर्थमेटिक मीन निकाला. डेट इज़ 81. डेट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द ब्रोमीन 80. ओके, सो उसने अपना जो है वो लॉ ऑफ ट्राइड पेश किया. ठीक है, और उसने क्या कहा कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, the atomic mass of the middle element is approximately equal to the average of other 2 elements. Okay, average of the atomic masses of other 2 elements. But his law work for few elements of the 50 or so that are not at the time. Okay, उस वक्त जितने जो है वो 50 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे. ठीक है, वो सिर्फ उनमें से कुछ एलिमेंट्स पे अप्लाई हो रहा था. ठीक है, अभी आपने देखा सिर्फ 4 ग्रुप ऐसे थे जिस पे वो अप्लाई हो रहा था. ठीक है, इसके अलावा वो किसी एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं हो रहा था. बट ही वॉज फर्स्ट टू मेक अ लिंक बिटवीन एटॉमिक वेट एंड प्रॉपर्टीज़. ठीक है, वो पहला साइंटिस्ट था जिसने एक लिंक बता दिया दैट देयर इज़ अ लिंक बिटवीन एटॉमिक वेट्स एंड प्रॉपर्टीज़. नेक्स्ट, न्यूलैंड्स वॉज अ साइंटिस्ट हु प्रेजेंटेड हिज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ठीक है, ऑक्टा मीन 8. तो उसने 8 का कानून पेश किया.
और उसने क्या कहा, उसने भी एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स। तो पहले जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने जो अरेंज किया एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट्स अरेंज किया, ठीक है। सो उसने क्या कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ रिपीट करता है, ठीक है। इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस देन एवरी 8th एलिमेंट हैज़ अ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टू इट्स फर्स्ट वन, ठीक है। हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो अपने पहले वाले एलिमेंट से सिमिलर होती है, ठीक है। लाइक द 8th नोट ऑफ अ म्यूज़िक, उसने उसको किससे कंपेयर किया, म्यूज़िक के नोट से कंपेयर किया कि जैसे म्यूज़िक की हर 8th नोट जो है वो रिपीट हो रही होती है, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो एलिमेंट्स भी अपनी प्रॉपर्टीज़ रिपीट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखें लिथियम से अगर हम काउंट करना शुरू करें तो सोडियम 8वां एलिमेंट है, तो सोडियम हैज़ अ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टू लिथियम, ओके। दोनों क्या हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं और दोनों के लास्ट वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है। सिमिलरली अगर हम बेरिलियम से काउंटिंग स्टार्ट करें तो बेरिलियम से 8वां एलिमेंट कौन सा आता है, मैग्नीशियम। इट हैव अ सेम प्रॉपर्टीज़ टू द बेरिलियम। सो इसने क्या पेश किया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, बट दिस इज आल्सो वर्क फॉर सम एटम्स और स्मॉलर एटम्स बट डज नॉट वर्क एज एटम्स बिकम प्रोग्रेसिवली लार्जर, ठीक है। ये स्टार्ट के सिर्फ 16 एलिमेंट्स पे ही अप्लाई हो रहा था, 17 एलिमेंट पे ये लॉ अप्लाई नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, ऑब्वियसली द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट्स, ओके। नेक्स्ट, Lothar Meyer was a scientist who presented his classification and compiled the periodic table of 56 elements, ठीक है। उसने अपने periodic table में कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया, 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मोलर वॉल्यूम। उसने किस पे एम्फेसाइज किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे एम्फेसाइज किया और उसने भी एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ही एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। उसने जो है एलिमेंट के एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट किया, ठीक है। वी नो डैट एवरी एलिमेंट हैव अ डेंसिटी, ठीक है। हर एलिमेंट की क्या होती है, बल्कि हर सब्सटेंस की क्या होती है, डेंसिटी होती है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू इट्स मास अवर वॉल्यूम, ठीक है। वी नो डैट एवरी सब्सटेंस हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम। तो मास को जब हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से तो वो किसके इक्वल होता है, उसके डेंसिटी के। तो उसने हर एलिमेंट का, हर एटम का क्या निकाला, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। कैसे निकलेगा, वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम डेंसिटी की जगह चले जाएगा और डेंसिटी नीचे आ जाएगी। सो ग्राम एटॉमिक वेट को हर एटम के वेट लिया और उसको उसकी डेंसिटी से डिवाइड करके उसके पास क्या आ गया, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। सो लॉथर मेयर प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन द एटॉमिक वॉल्यूम्स and atomic weights of the element and observed that the elements with similar properties occupied similar positions on the curve, okay। कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी ग्राफ पर उनकी पोजीशंस भी सेम थी। लेट्स सी, वाई एक्सिस पे उसने क्या रखा, एटॉमिक वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पे उसने क्या रखा, एटॉमिक मास, ठीक है। और जब इसने इन वैल्यूज़ को पुट किया एंड ही ऑब्टेन अ ग्राफ, तो आप देखें ये जो पीक्स पे आपको नज़र आ रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, डेट इज CS, सीजियम, ठीक है, दे आर ऑल अल्कली मेटल्स, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। दे आर सॉफ्ट मेटल्स, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, they have one electron in their valence shell, so similar elements occupy similar position on the curve, ठीक है। जो पीक्स पे आपको सारे नज़र आ रहे हैं ये सिमिलर एलिमेंट्स है। सिमिलरली आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, they occupy a similar positions, they are halogens, so he arrange elements on the basis of their atomic volume, ठीक है। इसने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे एम्फेसाइज किया और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसने कुछ नहीं बताया, इसलिए इसका जो लॉ था वो भी फेल्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है, मेंडलीव्स ने अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया, एक रशियन केमिस्ट थे और उन्होंने वेरियस एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स अरेंज किया, ठीक है। और उसने एक बाकायदा पहली बार एक लॉ पेश किया, ठीक है। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली
और उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला उसके क्योंकि उसका जो पीरियोडिक टेबल था उसके बहुत सारे एडवांटेजेस थे, और वो पहला पीरियोडिक टेबल था कि जो एक टेबुलर फॉर्म में था। ठीक है, इससे पहले हमने अभी जितने भी साइंटिस्ट के हमने टेबल्स या अरेंजमेंट पढ़ी हैं वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं थी। तो मेंडलीफ ने एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स को उसमें उसने अरेंज किया और उसकी एक्सप्लेनेशन भी पेश की, और बहुत सारे जो डाउटफुल एटॉमिक वेट्स थे बहुत सारे एलिमेंट्स के, उनके वेट्स को भी करेक्ट किया। ठीक है, जो अभी हम उसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे। और उसने एक बाकायदा लॉ पेश किया। उसने क्या किया, क्या कहा, द फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कि एलिमेंट्स जो अपनी प्रॉपर्टीज़ रिपीट करते हैं एट रेगुलर इंटरवल पर, वो किसकी वजह से रिपीट करते हैं, अपने एटॉमिक मासेस की वजह से रिपीट करते हैं। ठीक है, तो इसकी भी सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी वो यही थी कि इसने भी एलिमेंट्स को किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। सो व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, दैट इट कंसिस्ट ऑफ द 8 वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स। तो कितने वर्टिकल कॉलम्स थे उसके पीरियोडिक टेबल में, 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, दैट आर कॉल्ड ग्रुप्स, एंड 12 हॉरिजॉन्टल रॉस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रॉस कितनी थी, 12। ठीक है, लेफ्ट से राइट जो है दीज आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रॉस, और ये हॉरिजॉन्टल रॉस कितनी थी, 12 थी, दैट आर कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है, उसने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ वैकेंट स्पेसेस छोड़ी फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। वो एलिमेंट जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, उसने उसके लिए कुछ वैकेंट स्पेसेस छोड़ी, उनके एटॉमिक वेट्स भी प्रिडिक्ट कर दिए, उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी प्रिडिक्ट कर दी। ठीक है, वो कौन कौन सी स्पेसिस थी, ही नेम्ड देम एका बोरोन, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन। ओके, एका मीन बिलो, यानी बोरोन से नीचे एक स्पेस खाली है, एक एल्युमिनियम से नीचे और एक सिलिकॉन से नीचे। ठीक है, सो इन 3 एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसने प्रोडक्ट की। ठीक है, और जो है उसने उनके लिए वैकेंट स्पेसेस छोड़ी। So what are the advantages or merits of Mendeleev's periodic table? That it provides a systematic study of elements. Okay, कि अगर हमें ग्रुप की किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाए तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना आसान हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें पता है लिथियम इज़ अ सॉफ्ट मेटल, ओके, एंड इट हैव अ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जो सेम एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़, दे रिपीट देयर प्रॉपर्टीज़। तो सोडियम की प्रॉपर्टीज़ या पोटेशियम की प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर हैं, दे आर ऑल्सो सॉफ्ट मेटल। सो एक सिस्टमेटिक स्टडी प्रोवाइड की इसके पीरियोडिक टेबल ने कि ग्रुप में प्रेजेंट किसी एक एलिमेंट की स्टडी बाकी सारी एलिमेंट्स की स्टडी को आसान कर देती थी। ठीक है, नाउ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ठीक है, उसने क्या किया कि फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई उन एलिमेंट्स की जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, और उसने उनके लिए जगह छोड़ी थी। और बाद में जो है वो आने वाले साइंटिस्ट ने जो उनको डिस्कवर किया, तो एका बोरोन की जगह कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ, स्कैंडियम। एका एल्युमिनियम की जगह कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ, गैलियम। और एका सिलिकॉन की जगह कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ, डैट वाज जर्मेनियम। ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मेंडलीफ ने प्रिडिक्ट की थी। ठीक है, नाउ थर्ड इज़ द करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। उसके मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल ने बहुत सारे एलिमेंट्स के जो एटॉमिक वेट थे उनको भी करेक्ट किया। ठीक है, लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनियम, जो डाउटफुल जिनका एटॉमिक वेट डाउटफुल थे उनको भी करेक्ट किया। But there are some defects in the Mendeleev periodic table. Why? Because he also arranged the elements on the basis of their atomic weights. So it also has some anomalies, like there are 3 pairs of elements which have higher atomic weights placed before the elements of lower atomic weights. यानी उसने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक वेट ज़्यादा थे उनको पहले प्लेस कर दिया उन एलिमेंट्स से जिनके एटॉमिक वेट कम थे। लाइक अर्गोन 40 प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम 39। पोटेशियम 39 यानी कम है, इसको पहले आना चाहिए था, और अर्गोन को बाद में प्लेस करना चाहिए था। ठीक है, सिमिलरली कोबाल्ट 59.9 प्लेस्ड बिफोर निकल 58.6।
tellurium 127.6 placed before iodine 126.9. So this is a defect. Okay, similarly he left no place for the isotopes of elements. ठीक है, we know that every element has its isotope. हर एलिमेंट के आइसोटोप्स मौजूद होते हैं. आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका अटोमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन अटोमिक मास डिफरेंट होता है. सो कार्बन है तो कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है. तो इसके पीरियोडिक टेबल में उसने आइसोटोप्स की कोई जगह नहीं छोड़ी. सिमिलरली कुछ ऐसे एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिसिमिलर थी, वो आपस में बिल्कुल मैच नहीं करते थे, लेकिन उसने उनको सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया. फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स, I said that they are soft metals, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. He placed them with coinage metal. इसने उनको किसके साथ जो है वो सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया? coinage metal के साथ. coinage metals कौन से होते हैं? जिनसे coins बनती हैं. ठीक है, सिक्के बनते हैं. जैसे सिल्वर, Ag is the symbol of silver, कॉपर, Au means gold. ठीक है, तो गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, इनको अल्कली मेटल्स के साथ उसने प्लेस कर दिया और इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिसिमिलर थी. सिमिलरली सम एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दे आर प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप्स. कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम थी, उनको एक ही ग्रुप में होना चाहिए था, लेकिन उसने उनको डिफरेंट ग्रुप में प्लेस कर दिया, लाइक बेरियम एंड लेड. फिफ्थ, इट फेल टू गिव द आइडिया ऑफ अटोमिक स्ट्रक्चर. उसका जो पीरियोडिक टेबल था उसने अटोमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बताया. ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर को उसने आइडेंटिफाई या एक्सप्लेन नहीं किया. ठीक है, सो दीज आर सम डिफेक्ट्स इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. इन द नेक्स्ट क्लास वी स्टडीड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे. होम टास्क क्या है? आपने रिवाइज करना है लेक्चर, और एक इंटरेस्टिंग नोट है आपका पेज नंबर 62 पे कि कैसे जो है ये एलिमेंट्स जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे जिनकी प्लेसेस लेफ्ट की थी मेंडलीव ने, वो कैसे डिस्कवर हुए, किसने डिस्कवर किए. ठीक है, और मेंडलीव को जो है वो क्या नोबेल प्राइज़ और क्या एजाज़ मिला इस पर. तो एक इंटरेस्टिंग नोट है, आपने वो ये पढ़ना है अच्छे से. इसके अलावा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपने याद करने. थैंक यू स्टूडेंट.